Hello students, welcome back to YSR Academy. In this module, we're starting with a very new chapter after the finishing of the previous chapter. The name of the chapter, as you can see on the screen, is Human Health and Disease. Students, again, this chapter is dealing with human physio, which is the part of the human body, जो आपके set of chapters जो है bio में, उसमें human health belongs to the category of human physio. So ये एक chapter ऐसा है जो दो पार्ट्स में डील करता है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में मैनेज करता है. वन इज द टॉपिक ऑफ ह्यूमन हेल्थ and another is the topic of disease. So we are splitting the chapter in two different parts. Okay, one part we are understanding the complete concept of what is called as human health, and in the next part we are talking about the abnormalities with regards to our health, which is disease. So students will split it as I said you, and now in this module, we are starting with human health part, and human health we are going to discuss in detail. So students, let's begin very quickly to understand what exactly do we mean by the term human health. Now, students, अब जब human health के बारे में बात करते हो, health, ठीक है, when we talk about the word health, what do we really understand? Health का मतलब exactly क्या होता है? See, understand, according to WHO, health is defined as the state of physical, social and mental well-being. ठीक है, इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं. As you can see, we have three components: a state of physical, number one, physical, then you have social, and then you have mental well-being. Now, what exactly do we mean by this? Physical is how a organism or a human in that matter is. ठीक है, physically वो कैसे दिख रहा है, क्या वो physically fit है? If at all the answer is yes, a person is very well fine, physically fit, that's not a problem. And when you talk about, say for example, अगर mental health के बारे में, cognitive health, mental health, psychological health, जिसके बारे में जो चीज़ आपको visible नहीं है वो मगर वो बहुत ज़्यादा significant है, which is your mental health. Is person mentally stable? Is person mentally fine? All of these factors come under the ambit of the mental health. And then finally is the third, which is social. How are you with people? How do you interact with people? How do you have talks with people? Are you a social person, or are you just an introvert? So all of these factors belong to the concept of social health. Students, only and only when a person is physically fit, a person is mentally fit, a person is socially fit, can be considered as healthy. Only and only when these three parameters meet up, we have and we can define the person to be healthy. This is what health means, because health का aspect जो है वो सिर्फ किसी को सिक्स पैक एब्स है, किसी को एकदम फिट बॉडी है, chiseled body है, doesn't guarantee health. Okay, so if a person is mentally also very fine, if the person is socially very fine, and as well, of course, person is physically fine, then we can categorize him as healthy. So students, this is what in general contingencies, general understanding is what we understand health in the perspective of our body. But students, we should also understand that if at all our body's systems are not working in place, then you have something called as diseases, isn't it? अगर आपके बॉडी के सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं तो आपको डिजीजेस हो सकता है. अभी स्टूडेंट्स, डिजीजेस में क्या, डिजीजेस आर नथिंग बट अ स्टेट ऑफ deranged metabolic functions, जहां पे आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस में कुछ तो ऊपर नीचे हो चुका है, दैट इज नथिंग बट डिजीज. You understand the point? So in general, you have health and then you have disease. Students, in order to fight the disease, देखो हमारा बॉडी थोड़ी ना शांत बैठेगा, डिजीज आ गया तो चलो एक्सेप्ट कर लेते, नहीं. So in order to fight the disease, our body, human body encompasses, मतलब क्या, human body के पास एक बड़ा सा सिस्टम है. Human body do have one system, and what is the system? The name of the system is nothing but the immune system. इसको students आप बोलते हो immune system, ठीक है, immune system. Now students, immune system का क्या मतलब? Immune system का मतलब ये कि आपके body का natural tendency, understand this what I am trying to say you,
it is a natural ability, it is a natural ability of our body to fight or to defend the infections. बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में एंटर करने का कोशिश करता है तो उस इन्फेक्शंस को डील करना या उस इन्फेक्शन को मैनेज करना, ये जिम्मेदारी आपका इम्यून सिस्टम का होता है. सो इन शॉर्ट इम्यून सिस्टम इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ what we call as the word immunity. Okay, immunity. So can I say immunity and immune system are by and large same concepts? ठीक है, आपके बॉडी का नेचुरल एबिलिटी क्या है इन्फेक्शंस को मैनेज करने के लिए या फिर फाइट करने के लिए, इस चीज को आप इम्यून सिस्टम कहते हो या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनिटी. ठीक है, अभी ये जो इम्यूनिटी, ये जो शब्द है या ये जो वर्ड है इम्यूनिटी, ओके, इसके बारे में थोड़ा गौर करिएगा. इम्यूनिटी वॉज बिलीव्ड, ओके, इम्यूनिटी, ये वर्ड जो है इम्यूनिटी, इट इज बिलीव्ड टू बी कॉइन्ड बाय साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर. ओके, एक साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ये इम्यूनिटी का जो शब्द है वो सबसे पहले बार डिस्कस किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट से फॉरेन इन्फेक्शंस, ठीक है, हम लोग फॉरेन इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग से फॉर एग्जांपल हमारे इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के पास ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम सामने वाले इन्फेक्शन को अच्छे से फाइट कर पाए. सिमिलरली बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है वो भी अलग अलग फॉर्म्स का हो सकता है, इजंट इट? तो हमको क्या करना है, इंडिविजुअली सबको नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, हमको उसको एक ग्रुप कर देना है. और हमारे बॉडी में जो इस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए सबसे पोटेंट मॉलिक्यूल है, पोटेंट वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी पावरफुल मॉलिक्यूल है, वो भी तो एक ही होगा. सो मतलब हमको अभी दो टर्म समझने हैं, एक हमारे बॉडी के पर्सपेक्टिव से और एक हमारे सामने वाले इन्फेक्शन के पर्सपेक्टिव से. सो देयर आर टू टर्म्स व्हिच आई एम पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ व्हिच यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एंटीजन. Okay, the very first definition is antigen. Students, what is antigen per se? What is antigen? Antigen is nothing but it is any substance. Okay, it is any substance. It is any molecule. Okay, it can be any substance. It can be any molecule, or it can be any kind of organism. कुछ भी हो सकता है, वो तीनों में से कुछ भी. बस कंडीशन क्या है, इट कैन बी एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी, विच हैज द कैपेसिटी टू ट्रिगर द immune system. Any kind of substance, any kind of molecule which have an ability to trigger our immune system is what is called as, students, as antigen. So can antigen be something which is anything which is entering into our body? The answer is no. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे बॉडी के अंदर जो ये इंटेंशन से आ रहा है कि डैमेज पहुंचाना है, वही चीज एंटीजन कहलाता है. Are you understanding? So any compound, it can be any cell, it can be any organism, whichever wants to destroy our body, whichever wants to just disturb the balance of the body. In that sense, we can categorize that particular compound, molecule, or organism as an antigen. So will our body be quiet? Our bodies will be very, very active. Our human body immune system will be very, very active. So in response to antigen, our body would be doing something, isn't it? So that something is nothing but antibody. It's called as antibody. So students, how will you define antibody? Antibody is a protein. It is a protein molecule. Okay, it is a protein molecule which is produced in response to foreign antigen. ओके, ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक प्रोटीन होता है जो कि तब प्रोड्यूस होता है
जब आपके बॉडी में एंटीजन का एंट्री होगा। अगर आपके बॉडी में एंटीजन का एंट्री हो गया है तो जो केमिकल बने हमारे बॉडी में या हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। Are you understanding, students? So this is what it is. Either it can be antigen, either it can be an antibody. Antigen is something which can trigger our immune system. Antibody is a molecule which is produced by our immune system in order to defend our body from the antigen. I hope you're understanding this. So therefore, next topic of discussion would be the immunity. Definitely so. सबसे पहले भी guys जाते हैं अपन immunity के types पे, ठीक है? सबसे पहले जाएंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। डेफिनेटली हम लोग इसको जरा समझने का कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को। अभी गाइज ये क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है, जरा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, हमारे पास दो टाइप का इम्यूनिटी है। सबसे पहला एक होता है विच इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा इसके खत्म होने के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो यू हैव इनेट इम्यूनिटी। Students, innate immunity, when we talk or when we discuss the word innate, innate मतलब ऐसा टाइप का इम्यूनिटी है ये, okay, which is present since birth, okay। ये इम्यूनिटी बचपन से प्रेजेंट है, द डे यू वर बोर्न उस वक्त से ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, एंड दिस इम्यूनिटी इज called as innate, inside natal baby, immunity present inside the baby is called as innate immunity। इसका खास बात कुछ इस तरीके से है कि innate immunity जो होता है ना, it is a type of a non specific immunity। non specific immunity मतलब ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता गाइस, कि मुझे इसको ही मारना है तो ही मैं प्रोड्यूस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसका। ये टारगेट ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसका बेसिक इंटेंशन, बेसिक फोकस एक ही है। क्या फोकस है कि भाई जो भी हमारे रास्ते के बीच में आएगा, आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा, उस चीज को खत्म कर देना है। So it is a kind of a non-specific immunity and it does not have a very long-lasting effect, ठीक है। Forever it won't be helping you। हर बार आपको ये हेल्प करेगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो देन व्हाट इट इज, सो इन जनरल सेंस when we talk about this, you have to understand that innate immunity, whenever we discuss, it is present in the form of something called as barriers। Students, इंग्लिश में बैरियर का मतलब क्या है? इंग्लिश में बैरियर्स का मतलब कि बैरियर में रुकावट है ना, कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शंस है, कहीं तो ब्लॉकेजेस है, कोई तो रुकावट आई है, दैट इज योर बैरियर्स। सो इन दिस केस बैरियर्स अभी हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए जो सिस्टम हमारे पास है, दैट इज योर इनेट। इसके अंदर सबसे पहला वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर, ओके। एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमी इज स्ट्रक्चर, ओके। एनाटॉमिकल बैरियर सबसे पहला देखते हैं ना। एनाटॉमिकल बैरियर में सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन, चलो फटाक से सबसे पहला कर लेते हैं, विच इज स्किन, ठीक है। स्किन, स्टूडेंट्स स्किन के बारे में क्या खास बात है? देखो स्किन जो होता है आपका, मैं जस्ट यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। यू हैव, मान लो आपका सरफेस ऑफ द स्किन है, ठीक है। सरफेस ऑफ द स्किन है, ये सरफेस ऑफ द स्किन के ऊपर दो टाइप के ग्लैंड्स आपको ना देखने को मिलते हैं। दो टाइप के ग्लैंड्स, मैं यहाँ पे दो अलग अलग कलर से मेंशन कर रहा हूँ और थोड़े बड़े बना रहा हूँ। एक ये ग्लैंड है, दूसरा ना ये ग्लैंड है। अभी इस दोनों के अंदर ना कुछ तो केमिकल भरा हुआ है। कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है? जिन्होंने सही बोला है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे दो केमिकल्स है, देखिए। दिस इज कॉल्ड एज स्वेट ग्लैंड। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? यस, वेरी गुड, इसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। दिस इज योर sebaceous gland। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ sebaceous gland? sebaceous gland जो होता है ना गाइस, sebaceous glands are responsible to release something called as sebum। अभी के लिए इसको समझ लेना है ऑयल।
ठीक है। एंड स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करने वाले हैं? स्वेट। ठीक है, स्वेट। अभी ये क्या करते थे? देखो स्वेट अगर आपको पता होगा बचपन में, अगर आपने पढ़ा होगा, स्वेट जो होता है, स्वेट, स्वेट इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली टू थिंग्स। बहुत सारे होते हैं बट उसमें दो चीजें अभी अपने काम की है, वाटर एंड NaCl। ठीक है, इसमें ये NaCl को जरा गौर करिए। NaCl जो है ना, NaCl विल इनहिबिट, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना, इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी बॉडी के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को वो इनिबिट कर देता है। दिस इज नथिंग बट योर स्वेट। व्हाट डज सीबम डू गाइस? सीबम इज ऑयल, नो, ऑयल। सो जो आपका सीबम होता है, सीबम, इट विल प्रिवेंट, इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने नहीं देगा। MOS मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो कैन आई से एक टाइप का स्ट्रक्चरल डिफेंस है ये आपका। एक स्वेट हो गया, एक स्वेट हो गया, दूसरा सीबम हो गया। स्वेट क्या करेगा? सॉल्ट कंडीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होगा बैक्टीरिया या फिर एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो सेल उधर के उधर मर जाएगा। ऑयल क्या करेगा? ऑयल एंट्री ही नहीं करने देगा ऑक्सीजन का सरफेस पे। सरफेस पे अगर एंट्री ऑक्सीजन का नहीं करने दिया तो देन व्हाट हैपेंस कि भैया बैक्टीरिया का ग्रोथ, अगर जो एरोबिक बैक्टीरिया वो तो सर्वाइव वैसे भी नहीं कर पाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर एंड दैट इज व्हाई दिस कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है। नंबर 2 इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है भैया? म्यूकस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट अ वेरी स्टिकी लाइनिंग। ओके, it is very sticky lining which is present on different cavities। अलग अलग cavities में आपको ये sticky lining देखने को मिल सकती है। ये क्या करते हैं? ये जो sticky lining होता है guys, this mucus retards the microorganism। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मोटाइल है तो उसका स्पीड कम कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है। स्पीड ही घटा दिया, स्पीड घटा दिया, खत्म भाई। तो फिर आगे चल के और डिफेंस आएंगे जो इसको मैनेज करेंगे। सो दिस इज म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज एनाटॉमिकल बैरियर। देन यू हैव सर्टेन फंक्शनल बैरियर्स आल्सो। ठीक है, फॉर एग्जांपल तीसरा मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं। कैन आई से स्नीजिंग? स्नीजिंग, स्टूडेंट्स, स्नीजिंग किसके रिस्पॉन्स में होता है? स्नीजिंग इज रिस्पॉन्स टू इरिटेशन। तो अगर आपके विंड पाइप में या नाक में कोई ऐसी चीज चली गई जो जानी नहीं चाहिए थी, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई? उसमें वो आपको, आपका बॉडी जो रहेगा वो उस कचरे को, उस इरिटेशन को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकालने का कोशिश करेगा, एंड दैट इज ओनली व्हाट इज स्नीजिंग ना। तो स्नीजिंग मतलब छींकना, तो छींकना इज दैट प्रोसेस। ठीक है। तीसरा कैन बी, चौथा can be tears. Again tears is in response to, because it contains certain enzymes. Now they tear जो होते हैं, tears, it contains certain types of enzymes which is called as lysozymes. Lysozymes again defensive and protective in nature। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां से आने का कोशिश किया तो भाई उधर के उधर ही वो लोग उसको मार डाल सकते हैं। ठीक है। Then you have fifth, you can also have saliva ना? नहीं, saliva is also, it is also against, or it has capacity, different types of enzymes to kill the microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए सलाइवा भी काम को आ सकता है। ठीक है, और एक ले लेते हैं, सिक्स्थ, कॉफिंग, खांसना। कब कॉफ करते हो? कब खांसते हो? यस, करेक्ट। अगेन इफ देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ इरिटेशन, अभी देखो तुम समझो जरा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सब कुछ वैसा का मैकेनिज्म देखो इसका। सबसे पहले आपने स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्नीजिंग, टीयर, सलाइवा, कॉफिंग, हर जगह
बॉडी क्या करने का कोशिश कर रहा है, बॉडी ये करने का कोशिश कर रहा है कि भाई बाहर से कोई भी चीज अंदर ना आए। और अगर बाई चांस आ जाती है, अगर ठीक है, अगर मान लो कि आ गई, तो फिर बॉडी का जिम्मेदारी रहेगा कि भाई उस चीज को कैसे जल्द से जल्द अपन उसको बाहर कर सकते हैं। सो योर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज हाउ इट इज कि भाई स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्नीजिंग है, टीयर्स है, सलाइवा है, कॉफिंग, ये सारे मैकेनिज्म्स हो गए। ठीक है, एक फिजिकल बैरियर जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो आई मीन फिजियोलॉजिकल, एक बैरियर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिस सेकंड इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है, इसके अंदर एग्जांपल दे तो आपको चमकेगा। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, इसके अंदर यू हैव वन, इसके अंदर यू हैव वन। सबसे पहले यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज फीवर। फीवर, फीवर क्या, अगर किसी ने पूछा डिफाइन करिए तो क्या बोलेंगे? बराबर, इट इज नथिंग बट राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर में, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो फिर उसका फीवर बोलते हो। अभी इसमें क्या, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो नॉर्मल टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंटली मेंटेन होता है। ठीक है, अब आपको समझना यह है कि मान लो कि बाहर से कोई एंटीजन आया, एंटीजन को डिफाइन किया था, मान लो कि हाइपोथेटिकली मान लीजिए कोई तो एंटीजन आ गया। अभी ये जब एंटीजन आता है, ये एंटीजन आने के बाद बॉडी क्या चाहेगा, उसको जल्द से जल्द क्लियर करना है सिस्टम से। सो आपका जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, जिसको मैंने जब पढ़ाया था आपको, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज अ थर्मो रेगुलेटर। तो थर्मो रेगुलेटर का फंक्शन क्या था, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना। तो इसका यहाँ पे क्या रोल रहेगा कि भाई बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना, उससे क्या होने वाला है, उससे जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर अगर उसको डिवाइड करना है तो कैन आई से इट विल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, it will also require different types of molecules and chemicals for it to replicate the DNA. In order to replicate the DNA, you require multiple enzymes. मैंने क्या कर देना है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर बैक्टीरिया का टेम्परेचर भी बढ़ गया तो कैन आई से लॉजिकली स्पीकिंग एंजाइम्स वर्क बेस्ट ओनली एट ऑप्टिमम pH and optimum temperature, 11 standard biomolecules. If at all you increase the temperature, the enzyme activity would decrease. And if the enzyme activity would decrease, would they be able to replicate? The answer is no. अगर वो रेप्लिकेशन कर ही नहीं पाए, अगर वो रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाया उनका, तो डेफिनेटली कैन आई से वो लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो मर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो फीवर अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है, मगर एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है भैया? वो लिमिट डिपेंड करता है एनीथिंग अबाउट, सी 37 है, 98.6 प्लस माइनस 2 डिग्री का बफर लेके चलते हैं अपन, बट एनीथिंग अबाउ 100 शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, कि आपको वो ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई 98.6 इज नॉर्मल, बट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर जस्ट टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ बॉडी इज फीवर ना। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर टू inhibit the growth of microorganisms, और इन शॉर्ट एंटीजन कोई भी हो सकता है वो, इसके ग्रोथ को रोकने के लिए आपने फीवर करवा दी। ठीक है, ये सेकेंड। स्टूडेंट्स, तीसरा क्या? तीसरा इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर का मतलब क्या है भाई? सेल्स कौन से डिफेंस में आपके काम आ सकते हैं? देखो भाई, दो टाइप के सेल्स हैं, बता सकते हो? वेरी गुड यार। एक होता है विच इज कॉल्ड एज फैगोसिटिक सेल्स। ओके, एक फैगोसिटिक सेल्स होता है। ये फैगोसिटिक सेल्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, याद करो। वाओ यार, फैंटास्टिक। वन इज राइट, एक होता है जिसको आप बोलते हो न्यूट्रोफिल्स, और एक होता है जिसको आप बोलते हो मोनोसाइट्स। और दोनों का फंक्शन क्या होता है? दोनों का, यस करेक्ट स्टूडेंट, इन दोनों का फंक्शन जो रहेगा, इन दोनों का फंक्शन रहता है टू परफॉर्म समथिंग कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। जिनको फैगोसाइटोसिस नहीं पता, फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फमेंट। अभी जिनको एनगल्फमेंट भी नहीं पता,
इनगल्फमेंट मतलब जब WBC फॉरेन एंटीजन को निगल लेता है तो इनगल्फमेंट बोलते हैं। नहीं समझा तो प्लीज गो बैक टू द चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा होता है विच इज कॉल्ड एज natural killer cells. In simply you can also say NK cells. ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। अभी ये क्या है भाई? नेचुरल किलर सेल्स या NK cells are those cells which can be very very helpful in elimination. Okay, they can be very very helpful in elimination of either viruses or it can also be cancer. तो ये इसका मैकेनिज्म अपन आने वाले लेक्चर्स में या आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। सो दीज आर सेल्युलर बैरियर्स। ठीक है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। चौथा, द फोर्थ इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम गाइस कुछ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप ऑफ 30 प्रोटीन्स। ओके, और ये 30 प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं कि इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन समझते हो? सो इट इज A to B to C to D, ऐसा। सो एक एक्टिवेट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसा हो कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत सारा एक ग्रुप होता है जो एक साथ काम करता है इम्यून सिस्टम को हेल्प करने के लिए। ठीक है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज acute phase proteins. Acute phase proteins can be denoted by APPs, acute phase protein. ठीक है, अभी क्या भाई acute phase protein क्या होते हैं ना? These are a kind of markers which can enhance our immune response। हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को वो बढ़ा सकते हैं। अगर कोई एंटीजन आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं। एंड दीज मार्कर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। मतलब आपको ये बता सकते हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में है कि नहीं, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में है कि नहीं, ये भी आपको बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके जो टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज सी, हाँ, वन इज कॉल्ड एज सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक टाइप का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। देन यू हैव मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। देन यू हैव अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। देन सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन। ये अलग अलग टाइप के मार्कर जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जरा एक बार क्विकली देख लीजिए। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपके बॉडी के अंदर जाकर यहाँ पे कोई ना कोई अगर कोई भी चेंजेस रहे तो उसको डिटेक्ट करके आपको बता सकते हैं कोई इन्फ्लेमेशन है, इम्यून सिस्टम को पिकअप करना है नहीं करना है, सब कुछ एवरीथिंग इन जनरल दे कैन लेट यू नो। तो ये जो मैंने चीजें आपको बताई ये सारे के सारे बैरियर्स है गाइस। एवरीथिंग इज स्किन, mucous membrane, sneezing, tears, saliva, coughing, fever, cellular barriers, phagocytic cells, natural killer cells, complement system, acute phase proteins, and these all barriers that you're seeing are all of which are non-specific in nature। ये लोग non-specific है फंक्शन में और बिल्कुल भी टारगेट ओरिएंटेड नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसका टाइप रहा? इनिट। ठीक है, अभी बच्चों कहाँ पे जाएंगे? अभी अपन जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप की इम्यूनिटी पे विच इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अभी अपन सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी में जाएंगे। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो वर्ड खुद बता रहा है, देखो जरा वर्ड खुद बता रहा है क्या होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी which is acquired throughout
द लाइफ टाइम। ठीक है, ये ऐसा टाइप का इम्यूनिटी है जो आपका सीखता है बॉडी, बचपन से नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा बॉडी आपका सीखते जाएगा उतना ही ज्यादा आपका अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्ट्रांग होते जाएगा। सो दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी का खास बात यह है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टारगेट ओरिएंटेड, तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। कि नेचर में काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, दैट इज योर अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं अपन। ओके, लाइक फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड, क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो फटक से अपन इसको समझ लेते हैं। चलो, सबसे पहला स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज स्टूडेंट स्पेसिफिसिटी? स्पेसिफिसिटी मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है, ओके, इम्यून सिस्टम जो रहेगा, इम्यून सिस्टम, इट इज हाईली स्पेसिफिक। क्यों? काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, टारगेट ओरिएंटेड है, बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी, एक्सेप्शंस है हमेशा, बट मेजरली गलतियां कभी नहीं होंगी। ठीक है, इनका टारगेट फिक्स रहता है, इनको पता रहता है किसको अटैक करना है, किसको नहीं करना, सब कुछ ऑलरेडी पता है। दैट इज स्पेसिफिसिटी। देन यू हैव द सेकंड पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब आपको सिर्फ जुकाम होता है क्या? आपको सिर्फ खांसी होता है? नहीं ना, मतलब यू हैव वेरीड टाइप ऑफ एंटीजेंस। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटीजेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस इज डाइवर्सिटी। तीसरा जो है, इट इज डिस्क्रिमिनेशन between सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? आपके इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है। सो अवर इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम रहेगा, इसको पता है कि इसको अटैक किसको करना है। एक होता है सेल्फ सेल और एक होता है जिसको आप बोलते हो नॉन सेल्फ सेल। अभी तुमको देखकर पता चल गया है कि भाई अटैक किसको करना है, सेल्फ को अटैक नहीं करना है, नॉन सेल्फ को अटैक करना है। तो ये कैसे समझ में आएगा इसको? बिकॉज इसके पास सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स है जो आपका खुद का दिमाग लगाने वाले हैं और इस कंक्लूजन पे आने वाले हैं कि भाई ये अपना सेल है और सामने वाला सेल अपना नहीं है, तो अटैक किसको करना है? तो भाई जो अपना सेल नहीं है उसको ही अटैक करना है। ठीक है, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। फोर्थ, which is मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो इम्यून सिस्टम होता है गाइस, ओके, जो इम्यून सिस्टम होता है, दिस इम्यून सिस्टम अंडरस्टैंड्स और इट कैन रिटेन द मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। ओके, इट कैन रिटेन द मेमोरी ऑफ, अगर बाई चांस प्रीवियसली कुछ इन्फेक्शन हुआ है, प्रीवियसली कुछ अलग टाइप का एंटीजन आपके बॉडी में आया हुआ है, तो डेफिनेटली ये उसका याददाश्त रखता है। क्योंकि होता क्या है, जब आपके इम्यून सिस्टम को ये चीज पता ही नहीं है कि एंटीजन कैसा है, अगर उसको सरप्राइज मिल गया तो कहना से आपका इम्यून सिस्टम उसको कोप अप ही नहीं कर पाएगा, मैनेज ही नहीं कर पाएगा उस इन्फेक्शन को, एंड इन दैट केस यू विल अक्वायर द इन्फेक्शन। But will repeating this behavior would really benefit you? The answer is no. Which means that this benefit or the onus should be with us. What? That we have to ensure that if at all the antigen is coming in for the first time, and if by chance the antigen is overpowering us, then we'll have to make sure that we have the memory of that kind of an antigen. And if we have the memory of that antigen, then next time whenever, if at all the same type of antigen comes in, then that same antigen can be dealt very nicely without even affecting our body. And that is why antigens
का मेमोरी होना हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई योर इम्यून सिस्टम कैन कीप द मेमोरी गाइस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पक्के से ये तुम्हारे 4 फीचर्स। अभी देखते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स। अभी अक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या टाइप्स है जरा सुनिएगा। सबसे पहला इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहला इज एक्टिव इम्यूनिटी। अभी एक्टिव इम्यूनिटी में करते क्या है जरा समझना। एक्टिव इम्यूनिटी में देयर इज प्रोवाइडिंग द स्टिम्युलस टू our body to make antibodies। ओके, हम बॉडी को एक स्टिम्युलस देते हैं, और ये स्टिम्युलस क्या होता है गाइस? दिस स्टिम्युलस इज योर एंटीजन। ये हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं वैसे। तो ये एंटीजन रहेगा स्टिमुलस, जो एंटीजन एक बार आपके बॉडी में गया तो फिर वो आपके बॉडी को मजबूर करेगा क्या बनाने के लिए? वो बॉडी को मजबूर करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। तुम समझ में आ रहा है? इसको एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन दूसरे वाले पे जाते हैं। दूसरा वाला समझ के पहला भी अच्छे समझ जाएगा। दूसरा इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, passive immunity. Student, what is passive immunity? Passive immunity is when you are providing ready made antibodies, no matter whether the infection is there or no। हम लोग इसको रेडीमेड एंटीबॉडीज इस इंसान को ऑलरेडी दे देंगे। सो वेन एवर यू प्रोवाइड रेडीमेड एंटीबॉडीज इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, and whenever we provide the stimulus to make the antibody by the body, then it is called as active immunity। एक्टिव में 2 टाइप्स रहेंगे, पैसिव में आपके 2 टाइप्स रहेंगे, जिसको अभी अपन आगे समझते हैं। ठीक है, चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ साथ अभी अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी में सबसे पहला इज नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसके अंदर क्या है? ओके, एक्सपोजर टू द एंटीजन। ओके, एक्सपोजर टू द एंटीजन एंड देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। आपका बॉडी को आपने एक्सपोज करा दिया एक एंटीजन से, एंड फिर आपके बॉडी ने क्या बना दिया? उसके एंटीजन बना दिए। सर एग्जांपल दीजिए बेशक। example can be chicken pox, varicella zoster, एक chicken pox viral infection है। then you can have measles। ठीक है, measles। then you can have covid भी यहाँ पे ले लीजिए भैया, covid जो अभी आके गया, अभी भी है मतलब। ये देखो, ये क्या है? आप चिकन पॉक्स खुद से लाने के लिए गए थे? नहीं। मीजल्स लाने के लिए गए थे? नहीं। फिर हुआ कोई तो मीडियम हो सकता है जिससे हो गया। कोविड इनवाइट कर रहे थे, नहीं तो आ गया ना, आ गया आपके बॉडी में। अगर वो आ गया है तो आपका बॉडी क्या करेगा? फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम आपके अभी बताया मैंने, the body does not know कि how this infection is and how do we tackle it। so your body does not have any kind of understanding with it। तो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो गया, बट कैन आई से प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी। याद रखेगा, नेक्स्ट टाइम अगर सेम टाइप का एंटीजन अगर आ गया तो भाई मैटर खत्म। तो फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इन्फेक्शन है। इसकी वजह से आप नोटिस करना, मेजॉरिटी केसेस में देखो 100% तो पॉसिबल है, बायोलॉजी इज नॉट नेवर एवर 100% एप्लीकेबल टू एवरीबडी,
सो डेफिनेटली सो देयर वुड बी एक्सेप्शंस, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखने जाओ, चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं आता। मीजल्स सेम। कोविड बहुत कम केसेस में 2 बार 3 बार भी हुआ डेफिनेटली, बट अदरवाइज मेजोरिटी पॉपुलेशन को एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ। मतलब क्या कि ये एक बार फर्स्ट टाइम हो जाएगा, बट सेकेंड टाइम अगर होना है, इसको अगर चाहिए तो भाई वो तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज सेकेंड टाइम आपके इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, सेकेंड टाइम आपके इम्यून सिस्टम ने उसका मेमोरी कर दिया, और मेमोरी भैया अभी है तो भी सेकेंड टाइम इन्फेक्शन आएगा नहीं। नेचुरल, बिकॉज आपने मीजल्स को करने गए थे, चिकन पॉक्स को नहीं। अक्वायर्ड मिला, एक्टिव बॉडी को स्टिम्यूलस दिया ना, एंटीजन का स्टिम्युलस दिया, इम्यूनिटी इम्यूनिटी उड़ गया, खत्म खत्म। दूसरा देखो, दूसरा इज आर्टिफिशियल acquired active immunity। आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या भाई, इसके अंदर प्रोवाइडिंग स्टिम्युलस, ओके, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, आर्टिफिशियल तरीके से आप जबरदस्ती सारे स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो। सर एग्जांपल तो तब समझ रहे हैं, वेरी गुड, वेट, हैव यू हर्ड ऑफ वैक्सीन्स? भैया वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स आर दोस फॉर्म्स ऑफ द एंटीजन विच कैन नॉट कॉज यू इन्फेक्शन, ओके। वायरस इसका सरफेस पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इन्फेक्शन कॉजिंग है। इन्फेक्शन कॉजिंग मतलब अगर ये आपके बॉडी में गया तो फिर आपको इन्फेक्शन हो जाना है। मैंने क्या किया, ओरिजिनल वायरस लिया जिसके पूरा स्ट्रक्चर था, उसका मैंने क्या किया, इन्फेक्शन कॉजिंग पार्ट हटा दिया, इन्फेक्शन कॉजिंग पार्ट हटा दिया, इन्फेक्शन कॉजिंग पार्ट हटा दिया, और ये वायरस को लिया और मैंने बाटली में भरा और भैया इंजेक्शन दे दिया वैक्सीन का, उसको बोला वैक्सीन। आपका बॉडी कैनाई से, आपका इम्यून सिस्टम जो है इट विल रिकॉग्नाइज इट एज एंटीजन, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो आपका बॉडी क्या बनेगा, एंटीबॉडी। बट क्या इस बार आपके बॉडी को इन्फेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन कॉजिंग पार्ट मैंने हटा दिया है। इन अ वे आप आपके इम्यून सिस्टम को पागल बना रहे हो कि भैया देख ऐसा ऐसा आता है, ये ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा है, फंक्शन ऐसा, जो भी है याद रखना। जब आपका बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा तो कहने से मेमोरी भी रखेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर पूरा का पूरा वायरस आया या कोई भी एंटीजन पूरा आया, कैन आई से योर बॉडी नाउ हैज द मेमोरी फॉर दिस स्ट्रक्चर, इजंट इट? दिस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी अवेलेबल है, विच मीन्स योर बॉडी वोंट बी फॉलिंग प्रे फॉर दैट एंटीजन, विच मीन्स दैट आर्टिफिशियली आपने हर एक पॉसिबल एंटीजन का स्टिम्युलस दे दिया है। And that is how the vaccines work. Are vaccines safe? 100%. Will they cause any kind of side effects? No. Temporary, yes. Understanding what I'm saying? So therefore vaccines are very good. Can I have multiple examples of vaccines? बहुत सारे बच्चों के मतलब लाइक पुराने, जैसे मेरे में यहाँ पे निशान है, BCG का वैक्सीन करते, टीबी के लिए अपन देते थे, यहाँ पे निशान होता है। so बहुत सारे MMR करके वैक्सीन है, टीबी का वैक्सीन है, मेनिंजाइटिस करके वैक्सीन है, DTP का, मल्टीपल पोलियो का ओरल वैक्सीन है। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो बच्चों को आप देते हो ताकि बच्चों को वो इन्फेक्शन ना हो। सो दैट आर्टिफिशियल जबरदस्ती आया बाहर से बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के नहीं, इस बार आपने इन्वॉल्वमेंट करी, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड मिला, एक्टिव आपने एंटीबॉडीज दिया नहीं, आपने तो स्टिमुलस दिया, एक्टिव एंड इम्यूनिटी खत्म। समझ में आ रहा है? ये दोनों पे एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। अभी जाते हैं आगे। अभी नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स पैसिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन याद है कि दिलवाओ? पैसिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन क्या था? फटाक से देख लेना है विद इन 2 सेकेंड्स। 1 and 2 रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हो, फैंटास्टिक। चलो फटाक से आगे जाएंगे। पहला वाला कौन सा? सेम, नेचुरल, अक्वायर्ड, इस बार एक्टिव नहीं, पैसिव
इम्यूनिटी, ठीक है ऐसा। सो नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये कुछ इस तरीके से। भी इसमें मैं एग्जांपल देता हूं फिर आपको चमकेगा, ठीक है। इट इज ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू fetus, transfer of ready-made antibodies from mother to fetus, ठीक है, through first milk, and this first milk is called as colostrum, ये first milk. This contains antibodies, so they contain different types of immunoglobulins, ठीक है, antibodies IgG और IgA, so ये नाम मैं बता नहीं रहा बट ये एंटीबॉडीज होता है। बच्चा बाहर आने से पहले ऑलरेडी, सिर्फ बच्चा जब बाहर पेट के अंदर है तो सेफ है, जैसे बच्चा बाहर आया उसको डिफेंस के लिए कुछ तो चाहिए, तो डिफेंस के लिए मम्मी के फर्स्ट मिल्क से बहुत डेंस कॉन्सेंट्रेशन में एक एंटीबॉडी चले जाता है ताकि वो बच्चों को बेसिक लेवल का डिफेंस मिल पाए। एंड ये बेसिक लेवल का डिफेंस कहने से मम्मी ने प्रोवाइड किया। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द टॉपिक नाउ। नेचुरल आपने किया, अक्वायर्ड मिला, पैसिव रेडीमेड, नेचुरली मिला हुआ रेडीमेड एंटीबॉडी, नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। देखो समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। दूसरा इजी है रे, चैप्टर इजी पूरा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या करेंगे, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अभी इसके अंदर क्या भैया, सबसे पहला प्रोवाइडिंग रेडी मेड एंटीबॉडीज फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन केस ऑफ रेबीज, मतलब हॉर्सेस में अपना एंटीजन डाला, वहां से एंटीबॉडीज निकाले, वही एंटीबॉडीज को ह्यूमन के कॉन्सेंट्रेशन पे लेकर आकर ह्यूमंस को दे दिया। देखो आर्टिफिशियल, क्यों, नेचुरली नहीं हुआ हॉर्स को रेबीज, आपने रेबीज का एंटीजन हॉर्स के अंदर डाला, उसका इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग किया, तो आर्टिफिशियल। अक्वायर्ड मिला, पैसिव रेडीमेड इम्यूनिटी, खत्म, समझा। सो यू हैव वन साइड, यू कैन हैव अ ग्लैंस ओवर द स्क्रीन। एक साइड आपका है टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी तरफ है टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पक्के से गाइस समझ में आ रहा है? आई होप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एज द cells of immune system, ठीक है, cells of immune system। अभी स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस सेल्स ऑफ, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का यहाँ पे बात करने वाले हैं, विच इज योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं गाइस, इसके बारे में मैंने रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में भी बात किया था। लिम्फोसाइट्स आर द चीफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ओके। इम्यून सिस्टम के चीफ सेल्स, चीफ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में आपको मैंने बताया भी था कि भाई लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई याद कर सकता है लिम्फोसाइट्स क्या फंक्शन था उसका? लिम्फोसाइट जो था, लिम्फोसाइट्स, दीज वर द टाइप ऑफ WBCs इफ यू रिमेंबर, राइट? यस, सो व्हाट वर लिम्फोसाइट्स डूइंग? लिम्फोसाइट बिकॉज WBC तो प्रोटेक्टिव रहेंगे। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं उसका नाम। दे अराइज फ्रॉम वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, दे अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स, एंड इन स्टेम सेल्स का नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट,
हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। एंड ये सबसे पहले बार पाया गया था, इट वॉज फाउंड इन बर्सल टिश्यू और ऑल्सो कॉल्ड एज बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये एव्स में एक टिश्यू होता है, वहां पे मिला था। एंड ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे, ह्यूमंस के अंदर, so we have seen these lymphocytes in a region called as bone marrow, very very important, bone marrow, ठीक है। बोन मैरो में आपको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। अभी बोन मैरो जो है, बोन मैरो इट इज अ रीजन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स डेवलप करते हैं, लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्राइमरीली डेवलप करते हैं, मगर कुछ लिम्फोसाइट्स, some lymphocytes, सुनना, some lymphocytes migrate to a gland called as thymus, ठीक है। थाइमस में कुछ लिम्फोसाइट्स थाइमस में माइग्रेट हो जाते हैं। थाइमस में माइग्रेट करने के बाद वहां पे वो लोग मेच्योर होंगे, लिम्फोसाइट्स विल बिकम मेच्योर इन द थाइमस। जो लिम्फोसाइट्स थाइमस में मेच्योर हुए उनको बोलने का टी लिम्फोसाइट, ओके। जो लिम्फोसाइट्स थाइमस में मेच्योर हुए उनको बोलने का टी लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में डेवलप हुए उनको बोलने का बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को आप बोल दीजिए बी सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स को आप बोल दीजिए टी सेल्स। स्टूडेंट्स, ये ना फाउंडेशन है इम्यून सिस्टम का। बी सेल एंड टी सेल जो है, दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो ये जो इसमें जो आपका जो बी सेल होता है, सुनिएगा, आपका जो बी सेल होता है, बी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों बताओ? बी सेल जो है, बी सेल इट provides something called as humoral immunity। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है भाई? ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब ऐसा जो लिक्विड ब्लड, ऐसे एंटीजेंस जो ब्लड में आते हैं या ऐसे एंटीजेंस जो फ्लूइड्स में रहते हैं, उन सबको मैनेज करने का जिम्मेदारी बी सेल का होता है। एंड बाय हाउ बी सेल्स आर नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं बिकॉज दे रिस्पॉन्सिबल टू मेक द एंटीबॉडी। बी सेल्स also provide you a type of immunity which is called as AMIS. Students, what is AMIS? AMIS stands for antibody mediated immune system। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम मतलब ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के थ्रू डिफेंस अपने को करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपका टी सेल होता है, टी सेल ये टी सेल जो होता है, टी सेल इट प्रोवाइड्स सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर। तो ये सेल के लेवल पे आपको ये इम्यूनिटी देता है। कैसे? बाय प्रोडक्शन ऑफ, ये जो रहता है ये इट प्रोड्यूसेस क्लोन्स, अपने खुद के क्लोन्स बनाता है, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एंड देयरफॉर टी सेल प्रोवाइड्स व्हाट इज कॉल्ड एज सीमिस। स्टूडेंट, व्हाट इज सीमिस? सीमिस स्टैंड्स फॉर सेल mediated immune system, cell mediated immune system also called as CMS। खत्म। समझ में आ रहा है गाइस? देखो जरा क्या बोल रहा हूं मैं कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो जरा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज CMS। सो आपके पास बी सेल है, आपके पास टी सेल है। अभी इंडिविजुअली अपने को बी सेल का फंक्शनिंग देखना है, अपने को टी सेल का भी फंक्शनिंग देखना है, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी अपन जाते हैं मैकेनिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल।
ठीक है। सो मैकेनिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। ठीक है, बी सेल। तो ये क्या है मैकेनिज्म एंड एक्टिवेशन में चाहूंगा मैं कुछ इसके पहले मैं कुछ बोलूं उसके पहले जस्ट हैव अ ग्लैंस ओवर दिस स्लाइड। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए जरा, एक बार गो थ्रू करने का कोशिश करिए, फिर जाके मैं आपको हेल्प करता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इसके अंदर अभी सबसे पहले अपने को देखना है व्हाट इज कॉल्ड एज, यस करेक्ट। सो अभी अपन देखते हैं बी सेल। बी सेल, ठीक है। सो बी सेल का एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कैसे एक्टिवेट होता है। सो ना मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ना 2 मिनट रुकना जरा, तरह पे नहीं। ओके, ये ना आपका मान लीजिए ब्लड वेसल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, पक्का। अभी देखो, मान लो मान लो कि ये आपका एंटीजन, ओके, ये आपका एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। अभी एंटीजन आ गया, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह, बट ये लिक्विड में है, इतना समझना आपको, ब्लड वेसल के अंदर है, ठीक है। अभी होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका है, ये देखो, ये आपका है एक टाइप का सेल विच इज कॉल्ड एज, दिस सेल इज कॉल्ड एज टी हेल्पर। ये ना टी का टाइप है, ठीक है, टी का टाइप है ये, पक्का। ये दिख रहा है। अभी उसने क्या किया, टी हेल्पर ने एंटीजन को देखा, दिस इज योर एंटीजन, एंटीजन को देखा। द मोमेंट टी हेल्पर ने एंटीजन को देखा, जैसा ही एंटीजन का नजर, एंटीजन के ऊपर नजर पड़ गया उसका, टी हेल्पर ने क्या किया पता है, यहाँ पे टी हेल्पर ने एक्टिवेट किया एक सेल को, ठीक है, टी हेल्पर ने एक्टिवेट किया। तो टी हेल्पर ने किसको एक्टिवेट किया, टी हेल्पर ने एक्टिवेट किया एक दूसरे टाइप के सेल को विच इज कॉल्ड एज बी सेल, बी सेल। जिसके कारण हुआ क्या, जिसके कारण हुआ क्या, बी सेल गॉट एक्टिवेटेड, ये बी सेल एक्टिवेट हुआ। तो मतलब टी हेल्पर ने एंटीजन को देखा, ठीक है, टी हेल्पर ने बी सेल को एक्टिवेट किया। द मोमेंट बी सेल गेट्स एक्टिवेटेड, it splits into two cells, it splits into two cells. One cell, the group of the cell, one group of cell is इसी markers में, one group of cell is what is called as the plasma cell, and another group of cell is called as the B memory cell, ठीक है। ये दोनों के दोनों, because B cell got activated, तो अभी plasma cell is also activated and your B memory cell is also activated. प्लाज्मा सेल के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्या पता है, प्लाज्मा सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज एन एंटीबॉडी, एंड एंटीबॉडी लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो उसने क्या किया, प्लाज्मा सेल ने ढेर सारा एंटीबॉडी बना दिया, ढेर सारा एंटीबॉडी बना दिया। द मोमेंट प्लाज्मा सेल ने ढेर सारा एंटीबॉडी बना दिया, दीज एंटीबॉडीज, देखो मेमोरी का फंक्शन अभी क्लियर नहीं कर रहा हूं अभी, ये देखो ये एंटीबॉडीज जो रहेंगे ना, these antibodies are now going to reach at the site of infection, ठीक है, एक मिनट, these antibodies are now going to reach at the site of infection। तो कैसे रीच करेंगे ये देखिए जरा, सबसे पहला एक मिनट मेरे को ना ट्राई करने दो ये, ओके, तो ऐसा इसका डॉटेड लाइन, डॉटेड इससे बन जाएगा क्या, लेट्स सी, नहीं बनेगा, ठीक है, एनीवे चलो ऐसा छोड़ दो ना, तो ऐसा वैसे ही बता दे रहा हूँ। ये जो एंटीबॉडीज रहेंगे ना, these antibodies will reach at the site of infection, ये एंटीबॉडीज जो है इट विल रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। साइट ऑफ इन्फेक्शन ऐसा, इससे बेटर और ऐसा कर देते ना,
ठीक है, ये क्या हो गया, इन्फेक्शन के साइड पे आ गए। अब क्या, अब इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, इधर मैं नीचे वापस एक बना रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास, ओह सॉरी, तुम्हारे पास और एक ब्लड वेसल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मिनट जस्ट मेरे को ड्रॉ करने दीजिए। तुम्हारे पास और एक ब्लड वेसल सेम, ये मैंने बी सेल का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, डायग्रामेटिकली कैसे आपको समझ जाएगा ना फटाक से, इसके वजह से, ठीक है ऐसा। अब हम लोग क्या है, ये देखो, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, ठीक है। इधर से मैं इधर ट्रांजिशन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी एंटीबॉडीज कहाँ पे, एंटीबॉडीज अभी ब्लड में, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एंटीबॉडीज यहाँ पे ऐसा बना दिया, तो तुम्हारे एंटीबॉडीज, कैन आई से दीज एंटीबॉडीज विल बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हेल्पर ने बराबर बताया ना एंटीजन कैसे क्या, तो ये तो एकदम स्पेसिफिक रहेंगे। तो ये करते क्या है पता है, यहाँ पे तुम्हारा एंटीजन इधर है, दिस इज एंटीजन यहाँ पे, एंटीजन ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब क्या, अब क्या, ये जो आपके दोनों का कॉम्बिनेशन, अभी यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा। Antibodies are going to work by 3 different methods. I'll come back to this slide once more. I'm talking about the action of an antibody, ठीक है, और how an antibody works. Okay, so we are talking about mechanism of working of एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज कैसे करते हैं, 3 मेथड्स, इसमें 3 स्टेप्स करते हैं ये लोग, 3 स्टेप्स। सबसे पहला इज व्हाट इज कॉल्ड एज अग्लूटिनेशन, ओके, अग्लूटिनेशन। सेकेंड इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन, okay. Third is called as neutralization, okay, neutralization। अब ये तीनों के तीनों मेथड्स जो है वो मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने बनाया है। यहाँ पे देखो अभी क्या है, सबसे पहला अग्लूटिनेशन था। अग्लूटिनेशन में क्या हो रहा है देखिए, अग्लूटिनेशन में ये जो, मान लो इसको भी मैं छोटा कर रहा हूँ यार ताकि मैं समझा पाऊँ आपको, ऐसा ये जो रहेगा ना, ऐसा एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज आर गोइंग टू इमोबिलाइज द एंटीजन, कंप्लीट इमोबिलाइजेशन। मान लो ऐसा हो गया, एंटीजन को ऐसा पकड़ लिया, एंटीजन को ऐसा पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा पकड़ लिया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अग्लूटिनेशन, जहां पे होल्ड किया। उसके बाद अभी कर क्या रहे अपन, उसके बाद अपन ना इस पूरे सर्कल को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा कोट कर देंगे, कोटिंग, कोटिंग, इसको कोटिंग बोलते हैं, कोटिंग। कोटिंग इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन, कोटिंग इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। मान लो आपने कोट कर दिया, कोट कर दिया। सो पहला आपने क्या कर दिया, अग्लूटिनेशन कर दिया, जहां पे एंटीबॉडी ने एंटीजन को अटैच करवा दिया, कोटिंग किया आपने, ठीक है, कोट कर दिया। कोट करने के बाद देन देयर इज थर्ड स्टेप विच इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन में WBCs will come in, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल देयर इज अ, so there is a WBC, yes, so there is a WBC, ठीक है। this WBC will come in, this WBC will come in and will completely phagocytose this, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा वो भैया, वो पूरे कॉम्प्लेक्स को निगल लेगा। So first step was agglutination, second was opsonization, third is phagocytosis. Phagocytosis किसने किया, phagocytosis आपके WBC ने किया, ठीक है ना। इसके अंदर एक चीज आपको समझना है कि बाय चांस अगर कोई ऐसा एंटीजन है जिसने कोई टॉक्सिन्स रिलीज किए हैं, सो इवन न्यूट्रलाइजेशन, यहां पे लिख दे रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स टॉक्सिन क्लियरेंस ऑल्सो। मतलब अगर कोई एंटीजन ने टॉक्सिन रिलीज किया है तो उस टॉक्सिन को भी क्लियर करने का जिम्मेदारी न्यूट्रलाइजेशन का होता है।
एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, वही बता रहा हूँ यहाँ पे. इट इज कॉल्ड एज टिटेनस टॉक्सिन. टिटेनस टॉक्सिन, ठीक है, टीटी, टिटेनस टॉक्सिन. देखिए जरा समझ में आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ अ बी सेल. पक्के से नहीं समझ में आ रहा, प्लीज एक बार वापस रिवाइंड कर दीजिए. कुछ नहीं समझेगा तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है. अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज अवर मैकेनिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स. ठीक है, टी सेल के ना 4 ग्रुप्स है, ये 4 टाइप के सेल्स है, ठीक है. देयर आर 4 टाइप्स, so 4 clones of T cells. There are 4 different clones of T cell. अभी कौन से सबसे पहला देखते हैं T helper. Okay, students, so you have T helper. T helper जो it is going to activate सबसे पहला B cell. अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, ये B cells को भी एक्टिवेट करता है. एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्टिवेट समथिंग कॉल्ड एज T killer cell. ठीक है, ये T killer cell को भी एक्टिवेट करता है. ठीक है, सो इसका बेसिक फंक्शन हेल्पर का क्या है? T हेल्पर का फंक्शन हेल्प करना है एक्टिवेशन करने के लिए. हेल्प ना, हेल्पर, पक्का. दूसरा देखो, अभी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्या है भाई? दूसरा इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ T killer cell. ठीक है, इट्स अ किलर सेल. अभी किलर सेल क्या करता है? ये डायरेक्टली मार देता है सिचुएशन को. देखो कैसा है. तो यहाँ पे मान लो आपका एक सेल है, मैं अभी न्यूक्लियस एकदम कॉर्नर में कर दे रहा हूं. ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया. मान लो कोई वायरस आया, ठीक है, और वायरस अभी क्या कर रहा है? वायरस ना सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है. तो मान लीजिए सेल के अंदर वायरस ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो ये काउंट अपना बढ़ाया जा रहा है, ये ऐसा बढ़ाया जा रहा है काउंट अपना. ओके, ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा है. अभी ना टी किलर आता है. ठीक है, टी किलर आता है. देखिए टी किलर का एक्शन, दिस इज योर टी किलर करता क्या है? टी किलर इज गोइंग टू रिलीज 2 केमिकल्स. दो एंजाइम्स रिलीज करता है. वन इज कॉल्ड एज परफोरिन्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज लिम्फोटॉक्सिन्स. ठीक है, लिम्फोटॉक्सिन्स. इसमें का परफोरिन जो है वो इंपॉर्टेंट है. परफोरिन क्या करते हैं? देखिए, परफोरिन, यहां पे मान लो ये परफोरिन है. दिस परफोरिन वुड बी रिलीज्ड ऑन द सेल. और ये पूरा परफोरिन अटैक कर देगा. जैसे परफोरिन अटैक कर देगा ना, व्हाट इज गोना हैपन, कुछ समझा क्या हो रहा है? देयर इज परफोरेशन. देखो ना, परफोरिन मतलब परफोरेशंस. द मोमेंट परफोरेशंस आ गया, कैन आई से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर. तो इसके कारण ये बाहर आ गए सारे, ये सारे बाहर ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे. तो बाहर किसको रिक्रूट किया? यस, ये देखो WBC बाहर ही बैठे हुए. समझा? अभी ये लोग क्या करेंगे? ये उसको फैगोसाइटोस करेंगे. सो दिस इज हाउ अ टी किलर सेल वर्क्स. सो हेल्पर ने एक्टिवेट किया, किलर ने मार दिया. और तीसरा जो है, तीसरा सब टाइप जो इसका है, which is called as TS or also called as T suppressor. ये जो T suppressor होता है, T suppressor, it can suppress the immune system. ये immune system को suppress करता है. और the moment कहाँ पे लग सकता है ये? This can be required in case of organ transplants. ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आप चाहते हो ना कि भाई इम्यून सिस्टम सप्रेस रहने, तो भाई दिक्कत हो जाएगा. ठीक है. एंड चौथा आपका एक है विच इज कॉल्ड एज टी मेमोरी. क्या करता होगा? यस, परफेक्ट. मैं बी सेल में बताना भूल गया, बट सेम है ना. इट रिटेन्स द मेमोरी ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, इन्फेक्शन का मेमोरी रखता है. ये सेम टी सेल में भी कर रहा है.
ये सेम बी सेल में भी कर रहा है, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बी सेल रिटेन्स द मेमोरी, सेम फंक्शन। यहाँ पे बी सेल, ओके, एंड यहाँ पे आपका टी सेल। कुछ डाउट रहेगा तो देखिए भैया, आपका बी सेल भी हो गया, टी सेल भी हो गया। अब क्या, अब बचता है दिस थिंग कि भाई दूसरा टॉपिक डिस्कशन के लिए, विच इज योर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है, एंड दिस एंटीबॉडी जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, सबसे पहला फटाक से स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे स्टूडेंट्स अभी जाते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो प्रोटीनिक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं। इट्स अ प्रोटीन, it's a protein which is produced by, it is produced by, yes, plasma cells। and ये plasma cell किसका टाइप है, it is a distinguished type of a B cell, ठीक है। पक्का स्ट्रक्चर कैसा है, Y शेप है, राइट साइड में देखिए, इट इज Y shaped structure, Y shaped structure। एंड पहला वाला डायग्राम देखना है, Y shaped structure है and it has two components। इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं। वे दो कंपोनेंट्स कौन से, सबसे पहला एक आता है विच इज कॉल्ड एज हेवी चेन, और एक होता है जिसको आप बोलते हो लाइट चेन, ठीक है। कैन यू सी हेवी 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 हेवी, हेवी में वापस दो, एक होता है विच इज कॉल्ड एज वेरिएबल, और दूसरा होता है जिसको बोलते हो कांस्टेंट। सो हेवी चेन के अंदर ये पूरा हेवी है, कैन यू सी दिस इज द वेरिएबल, ये वेरिएबल, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ठीक है। लाइट में वापस दो, लुक एट द डायग्राम, अगेन यू हैव वेरिएबल एंड अगेन यू हैव कांस्टेंट, ठीक है। इसमें का वेरिएबल रीजन जो होता है ना, ये मैं यहाँ पे लिख के को बता रहा हूं, इसका जो वेरिएबल रीजन होगा, वेरिएबल रीजन, दिस वेरिएबल रीजन वुड चेंज बेस्ड ऑन एंटीजन। जो भी एंटीजन रहेगा उस एंटीजन के हिसाब से चेंज होते रहेगा, ये सेम नहीं रहता है, बिल्कुल भी सेम नहीं रहता है। पक्का समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। राइट साइड में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कि दैट इज हाउ एन एंटीबॉडी लुक्स और इट इज देयर। अगर जरूरत पड़ा तो आपको जो लिम्फोसाइट्स होंगे, जो आपके बी सेल प्लाज्मा सेल्स होंगे, दे कैन प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी एट अ रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो वाई है, तो वाई का जो शेप है पूरा ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हिंज। एंड बोथ द वाई स्ट्रक्चर, जो वाई आपका शेप है, ठीक है, वाई शेप is connected to each other by a bond which is called as disulfide bond। very very important guys, disulfide bond, ठीक है, इट्स अ डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि दोनों वाई को मेंटेन करके चलता है। अब ना यहाँ पे दो साइड्स होता है, देखो एंटीजन पे एक साइड, इट्स लॉक एंड की जैसा, मतलब जो एक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो मैंने बी सेल में बताया ना तुमको, दिस एक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लॉक एंड की। क्या मतलब इसका ये कि भाई इनका ना फिक्स्ड साइट्स होता है। जैसे एंटीबॉडी पे एक साइट होता है विच इज कॉल्ड एज पैराटोप, और एंटीजन पे एक साइट होता है जिसको आप बोलते हो एपिटोप। ओके,
paratope and epitope. Okay, paratope and epitope. Now paratope, which is present on the antibody, plus epitope, which is present on the antigen. जब दोनों को कंबाइन करोगे तो यू आर गोइंग टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एन एंटीजन antibody complex. Look at the second diagram. Can you spot the second diagram? Antigen antibody complex. So ये कहीं से भी कैसे भी जुड़ेंगे ऐसा नहीं है, इनका अटैचमेंट फिक्स रहेगा. और ये अटैचमेंट कैसा रहेगा? एंटीजन एपिटोप, एंटीबॉडी पैराटोप, ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. देखिए भैया समझ में आ रहा है क्या? पक्के से दिस इज योर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. सो इसके अलावा आपके और टेक्स्ट बुक में एंटीबॉडी के बारे में और ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज द ब्लड ग्रुपिंग. इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है चलो, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुपिंग. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस ब्लड ग्रुपिंग? एग्जैक्टली क्या है अभी जरा देखिए. ये तुम्हारा जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी मान लो इट्स अ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, मान लो ऐसा. इसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होता है जो आपको ये बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है. अगर मान लो ये ए है, ओके, अगर ए ऐसे लिखा नहीं होता ऑब्वियसली, बट मैं रिप्रेजेंट करा रहा हूँ यहाँ पे. ओके, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रेड पूरा है, ऐसा कुछ है, तो मान लीजिए पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए. अगर यहाँ पे बी लिखा तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी, ऐसा डिपेंड्स. सो द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दैट वी फॉलो इज कॉल्ड एज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बात डिस्कस करते हैं. एंड ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर. इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए, ए, बी एंड ओ. इनके 2 स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था डी कास्टेलो एंड स्टर्ली. ओके, ये 2 बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने डिस्कवर किया है ब्लड ग्रुप AB. ठीक है, अभी यहाँ पे है थोड़ा सा एक टेबल जो मैंने ऑलरेडी बना दिया, बट ना आई वांट टू मेक ड्रॉ इट फिजिकली, सी बिकॉज तभी वो बेटर समझ में भी आपको आएगा. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज. ठीक है, सो वी कैन हैव अ ग्लैंस ओवर दिस, जस्ट 2 सेकेंड्स. ओके, सो अभी आपके सामने टेबल है यहाँ पे. ये टेबल में देखो 4 ब्लड ग्रुप. ना पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, will have an antigen A. Person with blood group B will have an antigen B. Person with blood group AB will have antigen A and B. And person with blood group O will have no antigen. ठीक है, सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, ये आपके बॉडी के आपको हार्म नहीं करते हैं. पर्सन विद ब्लड ग्रुप A will have a B antibody. Okay, let me change the color. एक बार आप इसको जरा समझने का ट्राई करेंगे तो एक बार पर्सन जो है, एक मिनट कलर मेरे को बदलने दीजिए. ए वाला जो पर्सन है ब्लड ग्रुप है, इट विल हैव एन एंटीबॉडी बी वाला पर्सन विल हैव एंटीबॉडी ए बी विल हैव नो एंटीबॉडी एंड ओ विल हैव ए एंड बी एंटीबॉडी. ऑपोजिट क्यों लिखा है सर? अगर सेम टाइप का रहेगा तो क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी एंटीजन को अटैक कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए. पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए can donate the blood to blood group A, okay, and AB. Okay, person with blood group B can donate to B and AB. Person with blood group AB can donate only to AB, and person with blood group O can donate to A, B, AB and O. क्यों ऐसा? Because O is a universal donor. Good. Person with blood group A can donate to A or receive from A and also can receive from O because O is a universal donor.
बी वाला जो रहेगा वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसीवर, तो ये सबसे लेगा। एंड पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ। देखिए टेबल एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक में है गाइस, और यही चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है राइट साइड में। वो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने फिजिकली बताया आपको लेकर, तो इट कैन बी मच अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। यही सेम चीज और एक देखो, आपको तो पता होगा कि ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता। आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव बी पॉजिटिव, वो ऐसा होता है ना। तो पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव विच इज कॉल्ड एज एन कॉन्सेप्ट ऑफ आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन, अभी ये आर एच एंटीजन क्या है? आर एच एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजन डी। एंटीजन डी, अभी ये क्या है? सबसे पहली बार फाउंड इन रीसस मंकी, बंदर रीसस मंकी। इसकी वजह से देखो नाम क्या पड़ गया? आर एच, समझा? आर एच। अब ये होता क्या है, इसमें एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? आरबीसी, आरबीसी मान लीजिए पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए, उसके बाजू में और एक रिसेप्टर होगा। अगर ये रिसेप्टर रहा, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? बिकॉज ये रिसेप्टर है, इट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव। समझा? अगर मान लो ये रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, देखिए जरा, ऐसा है और सिर्फ ए है, आर एच का रिसेप्टर ही नहीं है, तो आर एच का रिसेप्टर है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? इट विल बी ए नेगेटिव। समझा? ऐसा तो आर एच रहा तो ए आर एच पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहा तो इट विल बी नेगेटिव। इसमें गाइस आपके टेक्स्ट बुक में एक केस दिया जो डिस्कस करना चाहूंगा मैं। व्हेन आर एच नेगेटिव मदर okay gives a birth to a baby with RH positive, baby is RH positive, mother is RH negative। ठीक है, जैसे ये देखो ना, RH नेगेटिव मतलब मम्मी के पास RH ग्रुप है ही नहीं, बच्चे के पास RH है, मतलब कोई तो होगा वो पॉजिटिव है। ऐसे केस में क्या होता है पता है कि मम्मी विल स्टार्ट मेकिंग द एंटीबॉडीज टुवर्ड्स द बेबी। जो मम्मी रहेगी वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगी और बेबी के ब्लड सेल्स को क्लॉट करा देगी, डिस्ट्रॉय करा देगी। So in this condition, if at all RH negative mother gives birth to an RH positive fetus, there is a condition which is called as erythroblastosis fetalis. It is erythroblastosis fetalis, or it is also called as hemolytic disease of न्यूबॉर्न, HDN। ठीक है, इरेथ्रोज इज आरबीसी, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट, फिटालिस फिटस, हीमोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज इन न्यूबॉर्न। ये कंडीशन आपको हो सकता है। सो ये फीमेल बच्चे को हो सकता है जिसकी वजह से डेथ होगा। ठीक है, so in order to avoid that, nowadays we give an anti-RH antibody which can prevent this condition. So today we have modern technologies available, nothing to really worry about it। ठीक है स्टूडेंट्स, this finishes with your human health part। इजी है। देखो हम लोग ने इस चैप्टर को 3 मॉड्यूल में देखते हैं। ह्यूमन हेल्थ वाला एक पार्ट करते हैं जो खत्म हो गया, पूरा हेल्थ नॉर्मल। नेक्स्ट मॉड्यूल वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी स्टफ, एंड द थर्ड मॉड्यूल विल बी एडोलेसेंस। सो 3 मॉड्यूल्स में चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है, ज़्यादा वेटेज होल्ड भी नहीं करते एग्जाम में। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना अगर अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका मेजोरिटी क्या, आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। आई होप आपका आज का मॉड्यूल आपको समझ में आया होगा। If at all you face any kind of difficulties or any kind of doubts, please let us know in the comments down below. Put your doubts, let us know what you feel about it, and also give us any feedback, any positive feedback, any kind of feedback that you would want to share. Also if at all you have not subscribed to our channel, and if you're new to our channel, I will highly recommend you to please subscribe to our YouTube channel, which is YSR Academy. Also, if you like our content, please give it a like button and share it with your friends so even they know about it, and share it to maximum of your friends as possible, because trust me guys, this is a platform which is offering you all the major courses, definitely physics, chemistry, mathematics, biology, and of course
geography, which has been there for a couple of months now. And also we are now launching computer science and information and technology, which is CS and IT. So even in that front, we are now moving ahead. And I think this holistic package, which offers virtually almost all the things for free, I think so that will be very unique and you should take the most advantage of. So I would highly recommend you to please let your friends know about it, that we have some platform which can really help you to score well. And I'm very, very sure that the best of the best faculties that we have on board with respect to physics, with respect to chemistry, with respect to biology, or with respect to mathematics, or geography, or CS, or IT, I'm very, very sure that success will be yours if you do and diligently follow the routine, the content that has been taught, and you practice with all those contents on regular basis. I hope this module is clear. I would recommend you also to please visit the earlier chapters that we have finished. I think all the major human physiology chapters we have done and over. So please also visit them. Let us know if you have any kind of doubts. You can get in touch with us if you have any kind of difficulties, you have any kind of feedbacks. Or I'll see you in the next class, the next module, which will be starting about diseases. So till then, guys, take care and stay safe. Goodbye.